بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنے فون پر نمبر پنچ کرنے لگے۔ کوئی آرمی چیف سے رابطہ کر رہا تھا، کوئی اعلیٰ حاکم کو پکار رہا تھا اور کوئی اپنے شعبے کے اعلیٰ عہدیدار سے کہہ رہا تھا وہ واپس آ چکے ہیں، انہوں نے ہماری نئی ایجاد کو اور پوری لیبارٹری کو بم دھماکوں سے اڑا دیا ہے، وہ سیارے والے واپس آ گئے ہیں۔ آج رات ہونے تک جیسے پورا امریکہ اور یورپ بیدار ہو گیا، حکومت اور فوج کے تمام شعبوں میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ چند اکابرین آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے، انہوں نے غیر معمولی جوتے پہننے والوں کو طوفانی رفتار سے فرار ہوتے اور نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ سیارے والے واپس آ گئے ہیں۔ بے شمار اکابرین آنکھوں دیکھے حالات کی تفصیلات سن رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے جو بلا ٹل گئی تھی وہ پھر ہم پر مسلط ہونے آ گئی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ہمارے ریڈار اور حساس جاسوسی آلات ناکارہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر ناکارہ نہیں ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان کے خلائی جہاز کس طرح چوری چھپے ہماری زمین پر پہنچ رہے ہیں؟ ان کا سکون برباد ہو گیا تھا، نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اکابرین میں سے ایک نے کہا وہ لوگ یہاں آتے ہی ہمیں چیلنج کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا بے شک وہ مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح مات کھا کر اور نقصانات اٹھا کر یہاں سے فرار ہوتے رہے ہیں۔ آخری بار بھی سونیا اور فرحاد نے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے سیارے والوں کو پہلے مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائی کرنی چاہیے، پہلے انہیں دھمکیاں دینی چاہیے۔ اکابرین میں سے ایک اور نے کہا ہو سکتا ہے انہیں بھی دھمکیاں مل رہی ہوں، ان سے ہمارا رابطہ ختم ہو چکا ہے، ہم نہیں جانتے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، مگر وہ خیال خانی کے ذریعے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہوں گے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں سے کہا گیا کہ وہ مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والوں سے رابطہ کریں اور سیارے والوں کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ ان کے دو ٹیلی پیتھی جانے والے میری اور سونیا کے دماغ میں آئے، ہم نے سانس روک کر انہیں بھگا دیا۔ انہوں نے دوسری بار آ کر کہا پلیز ہم سے ایک ضروری بات کریں۔ سونیا نے کہا جو لوگ ضروری ہوتے ہیں ان سے ضرور باتیں کی جاتی ہیں، تمہارے اکابرین دوستی کے تو کیا دشمنی کے بھی قابل نہیں ہے، دفع ہو جاؤ پھر نہ آنا۔ اس نے سانس روک کر انہیں بھگا دیا۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ انہوں نے اکابرین کے پاس آ کر کہا وہ ہماری ایک ذرا سی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ حضرات ٹیلی فون کے ذریعے ان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ میں اور میرے خیال خوانی کرنے والے اکابرین کے اندر جا رہے تھے، ان کی بدحواسیاں اور پریشانیاں دیکھ رہے تھے۔ دو اکابرین نے میرے اور سونیا کے موبائل فون نمبرز پنچ کیے، ہم نے اپنے اپنے فونز کا سوئچ آف کر دیا۔ وہ بار بار رابطہ کرنے لگے، بار بار یہی ریکارڈنگ سنائی دیتی رہی، آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کچھ دیر بعد ڈائل کریں۔ وہ بیچارے کوششیں کر رہے تھے، تھک ہار کر بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے رابطہ کیا گیا۔ سونیا اور فرحاد سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں، پلیز ان سے رابطہ کرائیں۔ انچارج نے کہا وہ بھی ہمارے رابطے میں نہیں ہیں، دونوں کے فون بند پڑے ہیں۔ اکابرین میں سے ایک نے پوچھا کہ سیارے والے پھر ہماری دنیا میں واپس آ گئے ہیں، وہ سونیا اور فرحاد کو بھی پریشان کر رہے ہیں، کیا اسی لیے انہوں نے اپنے فون بند کر رکھے ہیں؟ انچارج نے کہا سوری، میں اس سلسلے میں نہ کچھ جانتا ہوں نہ کوئی معقول جواب دے سکوں گا۔ انچارج نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے چند اکابرین ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، پھر فون کے ذریعے اور اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے ذریعے دوسرے اکابرین کو بتانے لگے سونیا اور فرحاد سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہم سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک نے کہا لعنت بھیجو، کیا ہم ان کے محتاج ہیں؟ ہم تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ سیارے والے ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا یہ نہ کہو کہ ان کے محتاج نہیں ہیں، ہم ہیں، ان کے محتاج ہیں، سیارے والوں سے ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہے ہیں، وہ مسلمان ہی انہیں بار بار یہاں سے بھگاتے رہے ہیں۔ ایک اور نے تائید میں کہا بے شک موجودہ حالات میں پھر ان کے محتاج ہو گئے ہیں، پتہ نہیں سونیا اور فرحاد کیسی دوائیں اسپرے کرتے ہیں کہ سیارے سے آنے والے کھٹمل یا تو مر جاتے ہیں یا جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم تھا امریکی اکابرین کے پاس ایک کمیونیکیٹنگ مشین ہے، ہم نے سیارے والوں سے ایسی کئی مشینیں حاصل کی تھی، میں نے ایسی ایک مشین کے ذریعے اکابرین سے رابطہ کیا، پھر تحریر کے ذریعے کہا میں گریڈ شعراء تم سے مخاطب ہوں، پچھلی رات تم سب نے ہماری واپسی کا تماشا دیکھا ہے، کیسا لگا یہ تماشا؟ اکابرین نے تحریر کے ذریعے جواب دیا ہم نے پچھلی بار تمہارے آدمیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، تمہیں سونیا اور فرحاد سے انتقام لینا چاہیے، لیکن تم نے آتے ہی ہماری ایک بہت بڑی سائنسی لیبارٹری کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ تباہی ایک نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہے، آئندہ جو کارروائی کی جائے گی اس کے نتیجے میں تم سب حوصلہ ہار کر میرے آگے سجدے میں گر پڑو گے۔
कुछ तो इंसाफ से सोचो। जो तुम्हारे दुश्मन है उनसे कतरा रहे हो। हमने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा तुम्हारे हाथों नुकसान उठाते रहे, फिर हमें क्यों निशाना बना रहे हो? मैंने तहरीर के जरिए कहा, जो खुराक जूद हजम होती है उसे खाया जाता है, और जिसे खाने से पेट खराब होता है, बीमारियां पैदा होती हैं, उसे दूर रहा जाता है। हमने सोनिया फरहाद को चुबाने और निकलने की कोशिशें की, मगर वो हमेशा गले में हड्डी की तरह अटकते रहे। उनके बरक्स तुम लोगों को जब चाहा आसानी से निगल लिया। सोनिया मेरे पास बैठी कम्युनिकेटिंग मशीन पर होने वाली तहरीरें पढ़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने तहरीर के जरिए अकाबरीन से कहा, तुम लोग अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस और जर्मनी में अपनी हुकूमतें कायम करके दुनिया का बाकी तमाम हिस्सा हमें देना चाहते थे। तुम्हारी या फिर बहुत बड़ी थी। हम दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में अपनी हुकूमत कायम कर सकते थे। मैंने जरा तवक्कुफ से लिखा, आप मगर ये मुसलमान लोहे के चने हैं, ना तो हम उन्हें चबा सकेंगे ना निकल सकेंगे। लिहाजा आप दुनिया के 3 हिस्सों में हुकूमत करने का ख्वाब नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उस एक हिस्से पर हुकूमत करेंगे जहाँ तुम लोगों की हुक्मरानी है। उन्होंने बौखला कर जवाबन लिखा, तुम्हारा ये फैसला गलत है। इसी तरह हम आज भी दुनिया के 3 हिस्सों पर तुम्हारी हुक्मरानी कायम करने के लिए हर तरह का ताउन करने को तैयार है। मैं तुम्हारे ताउन का मोहताज नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी इमदाद हासिल करना चाहता हूँ। सीधी सी बात कहता हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस और जर्मनी मेरे हवाले कर दो। मेरे गुलाम बनकर रहो या अपनी तमाम साइंस, टेक्नोलॉजी और फौजी कुव्वतों के जरिए दुनिया के 3 बड़े हिस्सों में जाकर हुक्मरानी करो जहाँ तुम मुझे धकेल रहे थे। वहाँ देखूंगा किस तरह मुसलमानों से मुकाबला करोगे और अपनी हुकूमतें कायम करोगे। उन्होंने तहरीर के जरिए कहा, तुम अपना ये ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकोगे। तुम मुसलमानों से खौफजदा हो, हम उनसे इत्तेहाद करेंगे और वो हमारा साथ देंगे, तो तुम्हें फिर एक बार यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने हंसते हुए सोनिया की तरफ देखा, फिर जवाबन लिखा, तुम लोग और मुसलमानों से इत्तेहाद करोगे। फरहाद और सोनिया के अलावा तुम लोगों की भी पूरी हिस्ट्री हमारे रिकॉर्ड रूम में है। वो हिस्ट्री शुरू से अब तक एक ही अहम बात रहती है, वो ये कि तुम सुपर पावर होने के बावजूद मुसलमानों से खौफजदा रहते हो, उनसे आर्जी तौर पर कभी सियासी इत्तेहाद करते हो, दोस्ती करते हो, फिर दुश्मनी करने लगते हो। ये साबित हो चुका है, न मुसलमानों से तुम्हारा इत्तेहाद होगा, न ही वो हमारे मामले में तुम्हारा साथ देंगे। अगर वो साथ देंगे तो तुम लोग फिर दुम दबाकर यहाँ से भागोगे। हम तुम्हें 12 घंटे की मोहलत देते हैं। आखिरी बार ये देखेंगे कि मुसलमानों से तुम्हारा इत्तेहाद हो सकता है या नहीं। होगा तो हमारे कानों में खतरे की घंटी बजने लगेगी। हम मुसलमानों से मुकाबला नहीं करेंगे, हमेशा की तरह उनसे नुकसान नहीं उठाएंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। मैं 12 घंटे बाद तुमसे राब्ता करूंगा। मैंने कम्युनिकेटिंग मशीन बंद कर दी। सोनिया ने हंसते हुए मेरे गले लगकर कहा, वाकई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो लातें उन्हें पड़ रही हैं उसके नतीजे में बड़ा ही काबिल दीद तमाशा होगा। अकाबरी ने सियारे वालों की तरफ से महफूज रहकर अपनी ताकत के नशे में दूर होकर हमसे दुश्मनी मोल ली थी। हमने भी तय किया था, ख्वाह कुछ हो जाए, कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझेंगे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे। अब उनके हाल पर छोड़ने का मतलब यही होता कि हम उन्हें ग्रेट इशरक और सियारे वालों के रहम करम पर छोड़ रहे हैं। उनके सामने ये नया मसला दरपेश था। वो सियारे वालों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके हाथ से अमेरिका और यूरोप का एक हिस्सा निकलने वाला था। वो सब इक़्तिदार की मसनद से गिरकर सियारे वालों के गुलाम बनने वाले थे। वो किसी हाल में इक़्तिदार से महरूम होने वाले नहीं थे। उनके सामने दूसरा रास्ता यही था कि 12 घंटे के अंदर हमसे दोस्ती कर लें, इत्तेहाद कायम करके सियारे वालों को फिर एक बार यहाँ से वापस जाने पर मजबूर कर दें। बेशर्मी और रिटाई उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। वो फिर हमारे आगे झुकने पर मजबूर हो गए। उन्होंने पहले फोन के जरिए फिर हमसे राब्ता करना चाहा। मैंने और सोनिया ने अपने फोन की सिम तब्दील कर दी थी। बाबा साहब के दायरे से उन्हें यही जवाब मिल रहा था कि हम राब्ते में नहीं हैं। जब भी राब्ता होगा अकाबरीन से बात करा दी जाएगी। वक्त तेज रफ्तारी से गुजरता जा रहा था। उन्हें 12 घंटे की मोहलत दी गई थी। 4 घंटे गुजर चुके थे। अमेरिका और यूरोप के तमाम अकाबरीन बाबा साहब के दायरे से राब्ता करते करते मायूस हो गए थे। इस्लामी ममालिक के जो हुक्मरान अमेरिका के ज़ेरे असर थे, उसके इशारों पर चलते हुए अपना इक़्तिदार कायम रखते थे। वो तमाम मुसलमान हुक्मरान भी बाबा साहब के दायरे से राब्ता करने लगे। उन्होंने आला हज़रत जनाब तबरेज़ी तक ये पैगाम पहुंचाया, हम अमेरिका की हमायत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी तरह सोनिया और फरहाद से राब्ता हो जाए। आला हज़रत ने जवाब दिया, बाबा साहब के दायरे में दीनी फ़राइज़ और दुनियावी फ़राइज़ अदा किए जाते हैं। दीनी फ़राइज़ हम अदा करते हैं और दुनियावी फ़राइज़ सोनिया, फरहाद और दूसरे टेलीपैथी जाने वाले अदा किया करते हैं। हम उनसे कहेंगे वो अमेरिकी अकाबरीन से राब्ता करें। वैसे उनके मामलात वो बेहतर तौर पर समझते हैं। हम आपका पैगाम उन तक पहुंचा देंगे। उसके बाद खुदा बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं जानते।
आला हज़रत जानते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में हमें कोई हिदायत नहीं दी, क्योंकि हम मकाबरीन के खिलाफ सही हिकमत अमली से काम ले रहे थे। 6 घंटे गुजर गए, 7 घंटे गुजर गए, तमाम मकाबरीन के हाथ पांव फूल रहे थे। उन्हें अगले 5 घंटों में अपने इक़्तिदार को बचाना था। ऐसे वक्त अपने खुदा के आगे गिड़गिड़ाया जाता है, गलतियों की माफी मांगी जाती है, सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं, लेकिन ठोकरें हमारी तरफ से पड़ रही थी। ऐसे वक्त में वो अपने अपने खुदा को भूल चुके थे, सिर्फ हमें याद कर रहे थे। अक्ल वाले खुदा की तलाश में निकलते हैं और वो हमारी तलाश में भटक रहे थे। एक एक लम्हा रेंगते रेंगते गुजरता है, यूं कछुआ की चाल चलता हुआ हफ्तों, महीनों, बरसों और सदियों में तब्दील हो जाता है। बेशुमार सदियां इसी तरह एक एक लम्हा करके गुजर चुकी हैं और आइंदा भी गुजरने वाली हैं। अकाबरीन को जो मोहलत दी गई थी उसके लम्हात किसी भी वक्त गुजरने वाले थे। उसके बाद उनके तमाम अकाबरीन पर क़यामत गुजरने वाली थी। मैंने अच्छी तरह यकीन दिला चुका था कि सारे वाले फिर हमारी दुनिया में आ गए हैं। ये मेरी टेलीपैथी का कमाल था। मैंने अपने अलाकारों को सियारे की मखलूक बनाकर उनकी गुफ्तगू काबरीन से कराई थी और कुछ वारदात भी की थी। ऐसी हिकमत अमली का खातिर ख्वाह नतीजा बरामद हुआ था। वो सब बुरी तरह खौफजदा थे। जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक था, सियारे से अभी तक कोई वापस नहीं आया था। मैंने इशरा बनकर कम्युनिकेटिंग मशीन के जरिए कहा था, हम मुसलमानों के हाथों बहुत नुकसान उठा चुके हैं, लिहाजा अब उनसे मुकाबला नहीं करेंगे। आइंदा तुमसे मुकाबला होगा। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में तुम्हारी जैसे अकाबरीन की हुक्मरानी है। मैं तुम सबसे इक़्तिदार और इख्तियारात छीन कर उन तमाम ममालिक पर हुकूमत करूंगा। तुम अपनी दुनिया में इंतहाई ताकतवर और सुपर पावर कहलाने के बावजूद मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगे, क्योंकि मुसलमानों की तरह तुम्हारे पास रूहानी कुव्वतें नहीं हैं। इशरा और उसके तमाम जांबाज बार बार उस जमीन पर आकर हमसे मात खा रहे थे। ये बात उनके समझ में आ गई थी कि हमारी पुश्त पर फवा साहब का इदारा है, रूहानी कुव्वतें हैं। हमारे वो दुश्मन अकाबरीन और सियारे वाले ये नहीं जानते थे कि हमें कभी कभी रूहानी कुव्वतों का सहारा मिलता है, वरना हम अपनी जहानत और हिकमत अमली से कुछ कुदरती हालात के साजगार होने के बायस उन पर हावी होते रहे हैं। सोनिया के साथ कुदरती हालात साजगार होते रहे थे। उसके सूंघने की गैर मामूली हिस्स ने हमेशा दुश्मनों को हमसे कमतर बनाया। हमारी दुनिया में चोर दरवाजे से आने वाले सियारे के लोग कहीं भी खुफिया पनाहगाह न बना सके। सोनिया मखसूस बू को पाकर चूहों को उनके बिलों से निकालती रही। इस बात पर सभी हैरान थे कि हम रपोश रहने वाले दुश्मनों तक किस तरह पहुंच जाते हैं। आज से तकरीबन 20 वर्ष पहले सोनिया के रिकॉर्ड में ये दर्ज था कि वो सूंघने की गैर मामूली हिस्स रखती है। बाबा फरीद वास्ती ने जानवरों जैसी हिस्स को उसके अंदर से खत्म कर दिया था। तब से एक तवील अरसे तक उसने अपनी गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया था, न ही वो कर सकती थी। इसलिए तमाम दुश्मनों के दिमागों से ये बात महव हो गई थी। अकाबरीन और सियारे वाले यही समझ रहे थे कि हम अपनी रूहानी कुव्वतों के जरिए रपोश रहने वालों तक पहुंच जाया करते हैं। जिंदगी में होने वाली छोटी बड़ी भूल ही किसी न किसी वारदात का बहाना बनती है, फिर उसी बहाने छोटे बड़े वाकयात जन्म लेने लगते हैं। बेशक दुश्मन सोनिया की गैर मामूली हिस्स को भूल गए थे, मगर हमसे भी एक भूल हो रही थी। मैंने ग्रेट इशरा बनकर कम्युनिकेटिंग मशीन के जरिए उन्हें अच्छी खासी धमकियां दी थी। वो सब बुरी तरह डरे हुए थे। ये समझ रहे थे कि मोहलत का मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही सियारे वाले उनके मुल्कों में तबाही और बर्बादी फैला देंगे। उन यहूदियों और ईसाइयों को ऐसे बुरे वक्त में हम मुसलमान ही याद आया करते थे। उन्होंने फिर हमसे समझौता करने की कोशिशें की, कई तरह से राब्ता करना चाहा और नाकाम होते रहे। हम उनकी परेशानियों और खौफो और राज को देख रहे थे। ये तय कर चुके थे कि मोहलत खत्म होने से पहले ही उनसे राब्ता करेंगे। अपनी दुनिया में अमनो अमान, अमनो सलामती की खातिर फिर एक बार उनसे दोस्ती और समझौता करेंगे। ऐसा करते वक्त हमने अपनी कामयाबी के मनफी पहलू के मुतालिक नहीं सोचा था। वो मनफी पहलू ये था कि जब मुसलमानों से दोस्ती और समझौता नहीं होगा, उन्हें हमसे कोई इमदाद नहीं मिलेगी, तो वो थक हार कर मजबूर होकर अपनी कम्युनिकेटिंग मशीन के जरिए ग्रेट इशरा से राब्ता करके उसकी गुलामी कबूल कर लेना चाहेंगे। और उन्होंने यही किया था। उनके सामने आखिरी रास्ता यही था। उन्होंने अपनी मशीन के जरिए उससे राब्ता किया, तहरीर के जरिए कहा, हम तुम्हारी दी हुई मोहलत से बहुत पहले ही हथियार डाल रहे हैं। अगर तुम हमारे चंद मुतालबात पूरे करोगे तो हम तुम्हें यहाँ का हुक्मरान तस्लीम कर लेंगे। ग्रेट इशरा ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया था, किसी तरह की मोहलत नहीं दी थी। वो उनका तहरीरी पैगाम पढ़कर चौंक गया। सोचने लगा, आखिर ये मामला क्या है? ऐसी क्या बात हो गई कि सुपर पावर कहलाने वाले तमाम अकाबरीन मेरे आगे झुकने को तैयार हो गए हैं? ये बात उसकी समझ में आने वाली नहीं थी। अकाबरीन में से एक ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? उसने तहरीर के जरिए कहा, मैंने बार बार तुम्हारी दुनिया में आकर शिकस्त खाई है, इसके बावजूद मेरे आगे झुकने पर क्यों तैयार हो गए हो? क्या मुझे ताने दे रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो?
हम तुम्हारा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं कर सकते। अब से 8 घंटे पहले तुमने साबित किया था तुम्हारे टेलीपैथी जाने वाले जानिसार फिर हमारी दुनिया में आ गए हैं। हमारे कई काबरीन ने उन्हें गैर मामूली जूते पहनकर आते और वारदात करके वापस जाते हुए देखा है। ग्रेट इशूरारा फिर एक बार नए मंसूबों के साथ हमारी दुनिया पर हमला करने वाला था। इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर चुका था, मगर उसके जानिसार अभी जमीन पर नहीं आए थे। उधर काबरीन दावा कर रहे थे कि उन्होंने सियारे वालों को वारदात करते और गैर मामूली जूतों के जरिए फरार होते देखा है। उसने काबरीन से पूछा, मेरे वो जानिसार तुम लोगों से क्या कह रहे थे? उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुमने अपनी कम्युनिकेटिंग मशीन के जरिए हमसे राब्ता किया था और कहा था मुसलमानों के पास रूहानी कुव्वतें हैं, लिहाजा तुम उनसे मुकाबला नहीं करोगे, सिर्फ हमें टारगेट बनाओगे। इशूरारा ने तहरीर के जरिए कहा कि दुरुस्त है, पता नहीं वो लोग किस तरह हमारे रोपोश रहने वाले जानिसारों तक पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। तुम्हारे पास बहुत बड़ी फौजी कुव्वत है, बेशुमार तजर्बाकार जासूस है, इसके बावजूद तुम कभी हमारे रोपोश रहने वाले मातहतों तक पहुंच नहीं पाए। इस पहलू से देखा जाए तो तुम लोग मुसलमानों के मुकाबले में हमारे सामने कमजोर हो। हमने माजी में तुम्हें कई बार जानी और माली नुकसान पहुँचाया है, मगर उन मुसलमानों का एक बाल भी बेका न कर सके। अकाबरीन में से एक ने कहा, तुमने यही कहा था हमारे पास रूहानी कुव्वतें नहीं हैं, इसलिए तुम जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका पर हुकूमत करने आ रहे हो, क्योंकि जब भी हमें नुकसान पहुंचाते हो मुसलमान तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आते और ना ही हमारी इमदाद करते हैं। ग्रेट इशूरारा ने कहा, ये तो वाकई सच्ची और खरी बातें हैं। मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि सिर्फ तुमसे मुकाबला होगा तो मुसलमानों की तरफ से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो हमारे मामले में मुदाखलत के लिए नहीं आएंगे। फिर उसने तहरीर के जरिए पूछा, ये तो बताओ अब से 8 घंटे पहले क्या वाकई किसी ग्रेट इशूरारा ने कम्युनिकेटिंग मशीन के जरिए राब्ता किया था? इस सवाल पर तमाम अकाबरीन चौंक गए। सबने एक दूसरे का मुंह देखा, फिर तहरीर के जरिए कहा, किसी दूसरे ने नहीं, तुमने ही राब्ता किया था। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई ग्रेट इशूरारा है? वो बोला, यही सवाल मुझे परेशान कर रहा है, मेरे अलावा कोई दूसरा इशूरारा कहाँ से पैदा हो गया? आर्मी के एक अफसर ने चौंक कर तहरीर के जरिए पूछा कि अब से 8 घंटे पहले तुमने कम्युनिकेटिंग मशीन के जरिए हमसे राब्ता नहीं किया था? हरगिज नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए तुम्हारी दुनिया में कौन मेरा रोल अदा कर रहा है। एक आला हकीम ने कहा, हम थोड़ी देर के लिए राब्ता खत्म कर रहे हैं, आपस में मशवरे कर रहे हैं, समझना चाहते हैं वो दूसरा ग्रेट इशूरारा कौन है, उसके बाद तुमसे बातें होंगी। उन्होंने राब्ता खत्म कर दिया। फिर एक दूसरे से कहने लगे, हम अब तक जबरदस्त धोखा खाते रहे हैं। एक ने कहा, मैं यकीन से कहता हूँ ये मुसलमानों की चाल है, फरहाद मकारी दिखा रहा है, ग्रेट इशूरारा बनकर हमें दहशतज़दा कर रहा है। एक और ने कहा, वो महज बच्चों की तरह धमकियां नहीं दे रहा है, जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। उसने हमारी एक बहुत बड़ी साइंस लेबोरेटरी को खंडर बना दिया है। ये साबित कर चुका है कि जब चाहेगा हमारे बीवी बच्चों के लिए मौत बन जाएगा। सवाल पैदा होता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? एक आला अफसर ने कहा, ये बचकाना सवाल है, जब हम उन्हें ईंट मारेंगे तो वो जवाबन पत्थर मारेंगे। हम मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इमेज बिगाड़ रहे हैं। अगर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमें जानी और माली नुकसान पहुंचाएंगे, तो दुनिया वालों पर यह साबित होता रहेगा कि वाकई मुसलमान दहशतगर्द हैं। एक आला हाकिम ने कहा, हियर इज द पॉइंट, फरहाद कुलम इंतकामी कार्रवाई करके मुसलमानों को बदनाम करना नहीं चाहता, इसलिए ग्रेट इशूरारा बनकर हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। ये साबित करता रहेगा कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो सियारे वालों की दुश्मनी के सबब हो रहा है। एक आला ओहदेदार ने कहा, माय गॉड, वो हमारे खिलाफ वाकई जबरदस्त चालें चल रहा है। हम मुसलमानों को बदनाम करना चाहेंगे, मगर यही साबित होता रहेगा कि सियारे वाले जानी और माली नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम इस सिलसिले में मुसलमानों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकेंगे। एक ने कहा, उनके खिलाफ सबूत या जहन्नुम में हमें अपनी सलामती की फिक्र करनी चाहिए। हमने सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ सख्ती से महाजराई की है, अब सोनिया और फरहाद उतनी ही सख्ती से हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। उन्हें किस तरह रोका जाएगा? एक ने कहा, जिस तरह हम जवाबी कार्रवाई के लिए सियारे वालों तक पहुंच नहीं पाते, उनकी खुफिया पनाहगाहों का पता नहीं लगा पाते, उसी तरह सोनिया और फरहाद तक पहुंचना भी हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। एक और ने कहा, सोनिया और फरहाद तो दूर की बात है, हम आज तक उनके किसी एक टेलीपैथी जाने वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। दूसरे ने पूछा कि आइंदा भी हम उनके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। एक आला अफसर ने कहा, इस बार जरूर जवाबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हमारी दुनिया में जो मशहूर मरूफ मुसलमान साइंसदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरी अजीम हस्तियाँ हैं, हम उन सबको अपना टारगेट बनाएंगे। उनके मुकद्दस मुकामात पर हमले करेंगे तो उन्हें बड़ी हद तक पसपा होना पड़ेगा।
ایک اور اعلیٰ حاکم نے کہا، اگر ہم مشہور و معروف مسلمانوں پر اور ان کے مقدس مقامات پر حملے کریں گے تو ظالم اور دہشت گرد کہلائیں گے۔ جو الزام مسلمانوں کو دے رہے ہیں وہی الزامات ہم پر عائد کیے جائیں گے۔ انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ افسر نے میز پر زوردار آواز کے ساتھ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ سب اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بولا، ہم فرحات کی چال اسی پر الٹ دیں گے۔ ہماری ٹیلی پیتھی جانے والے، ہماری فوج کے جوان اور انٹیلیجنس والے اپنا روح بدل کر سیارے والے بن کر مسلمانوں پر حملے کریں گے۔ یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ گریٹ ایشورا سیارے میں بیٹھا یہاں ایسی واردات کر رہا ہے۔ ایک نے کہا، واقعی یہ زبردست آئیڈیا ہے۔ گریٹ ایشورا مسلمانوں سے بری طرح مات کھا کر گیا ہے۔ اس طرح دنیا والوں کو یقین ہوگا کہ وہی مسلمانوں سے انتقام لے رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، فرحات گریٹ ایشورا بن کر ہمیں الو بنانا چاہتا تھا، مگر اس نے اپنی حماقت سے ہمیں یہ راہ سجائی ہے۔ ہم سیارے والے بن کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے اور کوئی ہمیں الزام نہیں دے سکے گا۔ وہ تمام اکابرین اسی پہلو پر مختلف انداز سے غور و فکر کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ آئندہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔